guys, I, Aro Sadia, welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. In today's class, we are going to start with Class 10th Geography Chapter 1 named as Resources and Development. But before starting this chapter, we have to understand what are resources. If you remember, we have studied in your Class 8 resource. Resources, sansadhan. Anything that is available to us by nature, by God, that is present in our surrounding environment and which has the ability to satisfy our needs is regarded as a resource. Anything like water. Water is regarded as a natural resource. It is present in an unlimited manner, right? And it acts as a resource. Why? Because it satisfies our need. What is our need for water? To satisfy our thirst. So that's why water is regarded as a resource. This land is a resource because it provides us the place to live on. That's why these things that are present in our nature regarded as a resource, right? A thing can only be called as a resource if it has a utility and a value. In class 8, if you remember, we have studied किसी भी चीज को हम resource तभी बोलेंगे when it has a usability, it has some utility and it has some value. Values are of two types, economic value and non-economic value. Like metals, gold is a metal and it is also a resource, but it has some economic value. Whereas if we see a landscape, it doesn't have an economic value, but it is pleasant for our eyes. Now let's have a look at the definition. What is a resource? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. Basically कुछ भी जो हमारे environment में present है और हमारी needs को satisfy कर रहा है, like our thirst, hunger, clothes, everything which can satisfy our needs are called as a resource. But there are some conditions when anything can be called as a resource. When we think human itself is a resource, हम खुद एक resource है, हमारी खुद की economic value है, we are earning good, then we are economically good resource for our family and for ourselves also, right? So human itself is a resource. Now there are, as I told you, रिसोर्स यूजिबिलिटी, यूटिलिटी एंड वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम किसी भी चीज को क्या बोलेंगे, रिसोर्स. बट कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम किसी भी चीज को क्या बोला जाए, रिसोर्स, एंड दिस कंडीशन आर टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल. अब हमें पता है सपोज राजस्थान के अंदर जो है गोल्ड की खाने हैं, राइट, बट हमें टेक्नोलॉजिकली भी तो उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए. सो जो रिसोर्स है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए हमारे लिए, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. मतलब उसकी इकोनॉमिक जो वर्थ है वो इतनी ना हो कि हम उसको निकालने में जितना पैसा लगा रहे हैं उतना उससे हम कमा ना पाए. सो वो इकोनॉमिकली फीजिबल भी होने चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस रिसोर्स. आई होप इट इज clear. Resource, anything that is present in our environment and that can satisfy our needs are called as a resource. Studying about resource, let's have a look at the relationship between nature, technology and institution. What is the relationship between nature, technology and institution? Now let's have a look at this diagram. इससे हमें बिल्कुल easily समझ में आ जाएगा. Human beings. I told you human beings itself is a resource and human being is a very valuable resource. Human is someone who can make its own value. How much valuable he or she is going to be for this environment, right? Now, human beings. Physical environment. When we look at a physical environment, presence of mountains, plateaus, rivers, ores, right? All these things come under this physical environment. Now, this human beings, all of them are interrelated. Human beings, with the help of technologies, can use this physical environment में जो present है ore, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके वो क्या करते हैं, जैसे कि लिथियम है, लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पेट्रोल है, हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, उन सबको क्या कर रहे हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि हम उसको क्या कर सके, यूज कर सके. तो ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग टेक्नोलॉजीज
ओके, एंड दे हैव सेट अप सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, हर उसमें कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो इसके लिए वर्क करती हैं, लाइक मेटल्स निकालने तो मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ऐसे डिपार्टमेंट्स ये फॉर्म कर लेते हैं जो क्या है, इन हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसमें जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है उनको हम हमारे लिए इजिली एक्सेसिबल बना सकें और हम उनको यूज कर सकें. सो all these three things, physical environment, technology and institution, are interrelated with each other, and all these three things were dependent on human beings. अगर हमारे physical environment में water present है but we are unaware of how to use it, how to draw water, so it's useless for us, right? Ores are present. For example, gold is present in abundance, but we don't know how to extract it, how to, use it economically that will aid us. So it's a wastage. That's why human is called as a very important resource, because everything is interrelated with each other. Like the process of transformation of thing available in our environment, जो भी चीजें हमारे environment में present है उसको हम transform कर रहे हैं किसके अंदर, and interact in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution. उसको हमें convert करने के लिए इनकी एक interactive relationship build होनी बहुत जरूरी है. Human beings interact with nature through technology. Definitely human beings जो है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट. और हम क्या एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं दैट कैन एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, गोल्ड का एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट कर रहे हैं किसके साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट, ओर्स, मेटल्स, इनके साथ, एंड देन एक इंस्टीट्यूशन हम डेवलप कर लेते हैं जो हमें क्या है इकोनॉमिकली ऐड कर सके. सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड institution. Resource classification. Now we are going to discuss how many types of resources are there, how resources are classified. So basically resources are classified as natural resource and a human resource. When we talk about this natural resource, they are further divided into two, that is renewable resource and non-renewable resource. What are renewable resource? That can be renewed, replenished, right? And non-renewable, that cannot be replenished, they get extinct, right? Now renewable resources are also of two types, continuous or flow and biological. Continuous or flow like solar energy. आजकल सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, वी कैन यूज सोलर एनर्जी. ठीक है, सनलाइट हमें डेली मिलेगी, एक लिमिटेड अमाउंट तो है नहीं कि हमें सनलाइट का एक पर्टिकुलर इतना ही अमाउंट मिलेगा. सो इट इज प्रेजेंट इन एन अनलिमिटेड फॉर्म. वाटर, it is present in an unlimited form, it is continuous and flowing, like wind energy. All these things are continuous renewable resource. And when we talk about biological renewable resource, it is of two types, natural vegetation and wildlife, basically our flora and fauna. Now non-renewable resource, non-renewable resources are the resources that once got extinct cannot be recycled, they take many years to get replenished. So recyclable मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, गोल्ड की आपके पास बार है, ठीक है, आप उसको पिघला के कुछ भी ऑर्नामेंट बना सकते हो. सो हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं. या आपके पास कोई चेन है, आप उसको ज्वेलर को देकर कुछ और बनवा सकते हो, तो इट इज रिसाइक्लेबल. तो मेटल्स आर रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल दैट इज फॉसिल फ्यूल्स. पेट्रोल बोलते हैं ना, हमें साइकिल यूज करनी चाहिए, पेट्रोल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो इट टेक्स 100 of years to get replenished, right? So they are non-renewable resource. Basically fossil fuels comes under non-renewable resource. And when we talk about the human resource, it is structure and institution, as we have discussed in relationship between nature, technology and institution, and quantity and quality. That's all for this classification of resource. Now we are going to discuss this classification in detail. We have seen the classification of resource in the tabular form. Now we are going to start discussing this classification in detail. First is on the basis of origin. Origin is उत्पत्ति के आधार पर resources are of two types, that is biotic resource and abiotic resource. As all of us know that what is biotic and abiotic? Biotic is all the living things and abiotic is all the non-living things. So when we talk about biotic resource, they are obtained from the biosphere and have life. We know that what is biosphere? It is a narrow sphere where life exists. So life is present in two entities, that is humans and plants, animals, all these things. So plants and animals, but human definitely
Now they are called as biotic resource, and abiotic resource, all the non-living things, जितनी भी non-living things है like air, water, soil, land, all these are resources and they are abiotic form of resource on the basis of origin. Now when we talk about on the basis of exhaustibility, we have discussed that natural resources and human resources. Natural resources में we have studied two, renewable resource and non-renewable resource. What are natural resources? The resources that are present in our environment and given to us by nature are called as a natural resource. Now on the basis of exhaustibility, they are of two types, renewable resource and non-renewable resource. As I told you, renewable resources are the resources that can get renewed or replenished with time, right? For example, metals. Renewable resource, for example, not metals, like solar energy, forest, soil and water. All these things are renewable resource. I told you water is present in an unlimited form and it is a resource. Solar energy we can get in an unlimited form. Wind we can get in an unlimited form. So all these are renewable resource. And when we talk about non-renewable resource, resource one get exhausted, take 100 years to get replenished. Such resources are known as non-renewable form of resource. And its examples are petrol, coal and natural gas. The third form of classification of resources on the basis of ownership. Ownership के basis पे हमने 4 parts के अंदर resources को बांटा है. First is individual. Individual resource is a resource that is owned by an इंडिविजुअल, किसी एक का है. सपोज लैंड के ऊपर एक प्लॉट है हमारा, तो वो रिसोर्स जो है वो सिर्फ किसका है? हमारा है, उस पर सिर्फ हमारा राइट है. नाउ कम्युनिटी रिसोर्स असेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी. कोई कम्युनिटी का कोई एरिया है तो उस पे उसके जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं सबका अधिकार होगा. फॉर एग्जाम्पल बरियल ग्राउंड्स. नेशनल, technically all the resources belong to nations, definitely, for example forest. And international resource which are not owned by any specific nation. ऐसे resources जो particular सिर्फ एक ही nation own नहीं कर रहा है, वो सब कौन है? International resources. These are the 3 types of classification we have studied on the basis of origin, on the basis of exhaustibility and on the basis of ownership. Now we are going to discuss about on the basis of status of development. On the basis of status of development, they are of 4 types. Resources are classified as 4: potential, developed stock and reserves. When we talk about potential, resources which are found in a region but have not been used. Like कश्मीर के अंदर हमने सुना था लिथियम के भंडार मिले, right? तो वहाँ पे लिथियम के भंडार जो थे वो present थे, but we are unaware of it and they haven't been used yet. So it means that they have the potential कि वहां से वो जो जमीन है उसमें potential है कि वो क्या लिथियम वहां से निकल सके. So these are regarded as potential resource. Now developed stocks, resource which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. Developed stocks क्या होते हैं? ऐसे resources जिनका सर्वे हो चुका है और उनकी कितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है, कैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो सब कुछ डिसाइड हो चुका है और वो हमारे किस काम आ सकता है? यूटिलाइजेशन. Okay, how we can utilize it. Now when we talk about stock, materials in the environment that have the potential to satisfy human need, जो भी हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल तो है, कश्मीर में लिथियम प्रेजेंट है, हम वहां से क्या लिथियम के भंडार निकाल सकते हैं. ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, but human beings do not have the appropriate technology to assess these stocks. but हमारे पास क्या है? अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि हम उनको क्या है एक्सेस कर सके, उनको एक्सट्रैक्ट कर सके और उनको यूटिलाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट बना सके. दैट आर कॉल्ड एज स्टॉक. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिजर्व, दे आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक व्हिच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नॉलेज. अब हमें क्या है, थोड़ी बहुत भी अगर हमें नॉलेज है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की मदद से हम उन भंडारों को जो भी एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं हम उनको निकाल लेते हैं और उनको एप्ट बना लेते हैं अपनी यूटिलाइजेशन के लिए और उनको फ्यूचर के लिए रिजर्व करते हैं. तो दे हैव बीन रिगार्डेड एज रिजर्व्स. लाइक डैम्स, राइट, हम क्या वहां पे स्टोर कर रहे हैं वाटर को, तो वो रिजर्व्स कहलाएंगे आपके. दैट्स ऑल फॉर आवर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स. एंड विद व्हाट आर रिसोर्स, classification of resource, relationship between human beings, institution, physical environment and technology. We are done with it. Now when we know about types of
resources, like classification of resources on the basis of origin, exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of development. All these things we have discussed. Now it is very important for us to know about the development of resources तो हमने पढ़ लिए कि हमारे पास resources है, but उन resources का development कैसे होता है, why it is important for us to understand this concept, development of resource, right? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, देखिए हमें डेवलपमेंट रिसोर्स के करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? हमें पता है वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज प्रेजेंट इन एन अनलिमिटेड फॉर्म, बट हमें यह भी पता है कि हमें वाटर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओनली 1% ऑफ वाटर इज फिट फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पस, राइट? हम क्या कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स? हम अपना वाटर को बहुत ही तरीके यूज कर रहे हैं, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, टैप्स ऑन छोड़ रहे हैं, टंकियां फुल कर रहे हैं, पानी गिर रहा है, वेस्ट कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, हम क्या वाटर को डिप्लीट कर रहे हैं, राइट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो हम वाटर का डिप्लीटेशन कर रहे हैं, लैंड का डिप्लीटेशन कर रहे हैं, राइट? हम क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, क्यों? अपनी नीड के लिए। एंड व्हाट इज आवर नीड? टू बिल्ड आवर हाउसेज। सी, accumulation of resources in few hands, indiscriminate exploitation of resources has lead to global crisis। ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये है कि हम क्या कर रहे हैं, एक तो रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सेस यूज कर रहे हैं, हम क्या है रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, हम उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जैसे कि हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, ठीक है, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो उससे हम क्या है वाइल्ड लाइफ को भी खत्म कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो आवर रिसोर्स, तो हम उसको भी डिप्लीट कर रहे हैं, और हम अपनी क्या है बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए, जो कि अब हमारी क्या हंगर बन चुका है कि हमें, हमारे पास घर तो है बट हमें और बेटर घर चाहिए, ठीक है, तो ये चीज जो हमारी ग्रीड है वो हमारी खत्म नहीं हो रही है, और उससे हम क्या है रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, और यही हमारी ग्रीड एक डिविजन क्रिएट कर रही है सोसाइटी में एज अ रिच एंड अ पुअर बाय यूजिंग दीज रिसोर्सेज, राइट? Suppose vehicle is a resource, vehicle is a style statement also, ठीक है, poor have cycle while the rich have a car, they are using fuel in it, पेट्रोल इज अ फॉसिल फ्यूल, और हम इतना यूज कर रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेगा, तो वी रिक्वायर प्लान कि हम अपने रिसोर्सेज जो है हम उनको प्लान कर सके, सो दैट हम उनका क्या डेवलपमेंट कर सके, राइट? तो ये तो हमारी 3 चीजें थी कि जिसके कारण हमें क्या डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज करने की नीड पड़ी। Therefore, proper development plan and a resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life। हमने ये बोला है ना कि पानी जो है उसको भी अनलिमिटेड है, बट उसको अच्छे से यूज करो ताकि आगे की जनरेशन भी, ऐसा तो है नहीं कि 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, वी हैव पेट्रोल, वी हैव वाटर, वी हैव लैंड, वी हैव एवरीथिंग दैट कैन एड टू आवर लिविंग, राइट? But it is not necessary that all these resources gonna last for last 10 years. So we have to plan it in such a way so that our future generations, our upcoming generations can also have access to these resources, right? Now, what is sustainable development? It is a very important term and many questions can be asked from it. Sustainable economic development or a sustainable development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। इसका मतलब ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि हम जो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, अभी तो हम यूज कर रहे हैं, बट वी शुड बी अवेयर, हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि वी शुड सेव दीज रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। ऐसा नहीं हो कि हम सब कुछ अभी यूज करके एक्सटेंड कर दें और आगे वाले के लिए कुछ मिले ही, बचे ही ना, उन्हें कुछ मिले ही नहीं। दैट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जैसे हम क्या है एक्सेस यूज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का, सपोज हम नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, व्हीकल से जो स्मोक निकल रहा है उससे क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीटेशन, ये सारी चीजें जो है ये क्या है, हम ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं, इन सब चीजों से क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो ये गर्मी तो हम सबको ही फेस करनी है। तो इन सब चीजों को हमें प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट दीज रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय आवर फ्यूचर अपकमिंग जनरेशन। रीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, हमें अवेयर होना चाहिए अपने रिसोर्सेज की नीड को, और उसको हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो अवेलेबल
ना हो। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये क्या इंश्योर करता है कि हमें क्या है, रिसोर्स की प्लानिंग करनी चाहिए, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना चाहिए। और इसी के लिए रियो डी जेनेरियो और समिट हुआ 1992 के अंदर, एक समिट हुआ जिसके अंदर मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट मेट एट रियो डी जेनेरियो। द समिट वाज कन्विंस्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। देखो अब हर नेशन अपने लेवल पे तो काम कर ही रहा है, ठीक है, फॉर देयर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या राइजेस हो रही है, सपोज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर अराइजिंग। बट एक ग्लोबल लेवल पे काम करने के लिए सारी 100 कंट्रीज जो है उनके हेड्स आते हैं, दे मेट टुगेदर एट रियो डी जेनेरियो, और वो लोग किस टॉपिक पे बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपने एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, राइट। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। 1992 में इन लोगों ने क्या अडॉप्ट किया, एजेंडा 21, और उसमें इन्होंने क्या किया कि हमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स का। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक समिट हुआ रियो डी जेनेरियो में, और समिट हुआ 1992 में, और इसका आउटकम क्या हुआ, एजेंडा 21। And what is Agenda 21? It is the declaration signed by the world leaders in 1992, जो कि कहाँ हो रहा था, रियो डी जेनेरियो में, नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, की हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करेंगे, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पे वर्क करेंगे। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट अ ग्लोबल लेवल। रियो डी जेनेरियो समिट जो है ये कहाँ पे इंश्योर कर रहा है हमारा डेवलपमेंट, एट अ ग्लोबल लेवल। अब ये जो एजेंडा है ये कॉम्बैक्ट किससे करना चाहता है, क्या हम करना चाहते हैं इससे, ठीक है। एक तो एनवायरमेंटल डैमेजेस जितने हो रहे हैं, पॉवर्टी is the base main concern, right, and diseases, ये 3 चीजें हैं जिसको हम क्या है, कॉम्बैक्ट करना चाहते हैं थ्रू एजेंडा 21। One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own 21 agendas। हर जो नेशन की गवर्नमेंट है वो अपने 21 एजेंडाज बनाए, और उसका मेन एम क्या होना चाहिए, टू कॉम्बैट दीज 3 environmental damages, poverty and diseases। I hope it is clear। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए एक समिट हुई रियो डी जेनेरियो और समिट इन 1992, एंड इसका आउटकम क्या हुआ, एजेंडा 21। और एजेंडा 21 क्यों बनाया गया, सो दैट वी कैन कॉम्बैट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी एंड डिजीजेस। प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग की नीड क्यों पड़ी, हमारे पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज हमारे पास कैसे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट है। बट हमें रिसोर्स की प्लानिंग करने की नीड क्यों पड़ रही है, क्यों, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। ऐसा तो फिक्स्ड नहीं है ना कि यहाँ पे इतना ही पानी है फिर वहां पे बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, किसी जगह पर पानी ही नहीं है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में हम बोलते हैं इट्स अ डेजर्ट, तो यहाँ पे पानी की कमी है, राइट। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे वाटर के झरने हैं, राइट। तो ये क्या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फिजियोग्राफिक डिवीजन के बेसिस पे, फिजियोलॉजी के बेसिस पे हमारे क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं रिसोर्सेज। तो इसलिए हमें कि वो पानी जो है वो हर जगह पहुंचे, राजस्थान में भी पहुंचे और बाकी कहीं और जगह भी पहुंचे, इसलिए हमें क्या रिसोर्स प्लानिंग की नीड जो है वो पड़ती है, ठीक है। अब रिसोर्स प्लानिंग जो है वो हम करते कैसे हैं, सबसे पहला स्टेप इसमें होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सर्वे करना, मैपिंग करना कि हमें क्या है, सर्वे सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल होनी चाहिए कि हाँ इस जगह पे ये रिसोर्स निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में लिथियम के भंडार है, राइट, तो हमें क्या है वहाँ पे पोटेंशियल है कि यहाँ पे ये है, तो हमने सबसे पहले वहाँ क्या किया, सर्वे किया, अच्छा यहाँ पे लिथियम हमें मिल सकता है। फिर हमने क्या है वहाँ पे सर्वेस किए, मैपिंग की कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी। आफ्टर दैट हमने एक प्लान बनाया, बिना किसी प्लान और स्ट्रैटेजी के तो हम किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। वी रिक्वायर टेक्नोलॉजी, वी रिक्वायर मैन पावर फॉर इट, राइट। सो हम क्या एक प्लान बनाएंगे। आफ्टर दैट मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब जो हमने वहां से सपोज हम कोई मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, वो नेशन को भी हेल्प कर रहे हैं। हम पूरा प्लान कर रहे हैं कि ये चीज जो है इसको ऐसे निकाला जाएगा एंड ये इकोनॉमिकली हमें भी हेल्प करे और किसको, नेशन को भी हेल्प करे। दैट्स व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Without planning you can't do anything,
थिंग. नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स का कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, हम पढ़ ही चुके हैं. बिकॉज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम उनको कंजर्व नहीं करेंगे तो कुछ जगह पे एक्सेस अवेलेबिलिटी के कारण वो खत्म हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हम बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लैंड की अवेलेबिलिटी आज हम देखो मेट्रोज में लैंड दिखता ही नहीं, हर जगह बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, घर ही घर है. तो वो क्या है, हम अपनी नीड को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, वहां हम अपनी ग्रीड को फुलफिल कर रहे हैं. नेचर ने हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लैंड दिया है, राइट. तो हम क्या है, एक घर बना लिया, फिर हमारी ग्रीड बढ़ी. नीड तो फुलफिल हो गई घर की, बट ग्रीड बढ़ी, और बड़ा घर चाहिए. तो हमने क्या है, डिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिया. वहां पे हमने लैंड, बैरन लैंड जो है उनपे हमने घर के कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी. तो ये क्या हो रहा है, हम अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं. अब हमारी क्या है, ग्रीड है. अभी हमारे पास साइकिल है, फिर हमें 2 व्हीलर चाहिए, फिर हमें 4 व्हीलर चाहिए. तो दिस इज आवर ग्रीड, जो है उससे ज्यादा ही हमें चाहिए. देयर इज वन कोट given by Mahatma Gandhi, and a question can be asked on this: there is enough for everybody's need, but not for anybody's greed. क्या बोल रहे हैं ये, क्या बोलना चाहते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो इनफ है हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए, बट हमारी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए नहीं. ओके. In this chapter, resources and development, after discussing about resource, classification of resource, its relationship, now we are going to start with two resources named as land and soil. In this part, we are going to discuss land as a resource. Land जो है उसको as a resource कैसे हम मान सकते हैं. Land जो है वो एक हमें चीज प्रोवाइड कर रहा है जिसपे हम क्या है, अपना घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अपनी नीड टू लिव अंडर अ रूफ हम अपने उसको फुलफिल कर सकते हैं. This is what land provides us. It is a resource of finite magnitude. Finite magnitude means लिमिटेड लैंड ही अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लैंड अवेलेबल है, तो उस लैंड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट. नाउ लैंड एज अ रिसोर्स, लैंड का जो एरिया है वो हम 3 में बांट सकते हैं, जैसे कि प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. प्लेन्स जो है वो 43% है, प्लेन्स हमारी अर्थ पे, ठीक है. अब ये जो 43% है, इसी पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है, प्लेन्स में. फिर आ जाते हैं माउंटेन्स. अगर माउंटेन्स नहीं होंगे आपके पास तो आपके पास रिवर्स कहाँ से अराइव करेंगी, राइट. देन प्लेट्यूज नहीं होंगे तो मिनरल्स हमें कहाँ से मिलेंगे. तो ये तीनों ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दिस सर्व्स एज अ लैंड एज अ रिसोर्स, दैट इज प्लेन, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. अब ये जो लैंड है इसका हम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं. एक तो देखो सबसे मेन क्या है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं हमें, वाइल्ड लाइफ, राइट. तो ये हमारा रिसोर्स हो गया. लैंड अवेलेबल फॉर, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो वो क्या कहलाता है, बैरन लैंड और वेट लैंड. और उसी लैंड पे जो कल्टीवेशन जहां नहीं हो रहा वहां पे हम क्या करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ये सारी चीजें वही होती है. नाउ फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, ऐसा लैंड जो एक एग्रीकल्चरल ईयर में वहां पे कोई भी खेती नहीं हुई हो, ऐसे लैंड को क्या बोला जाता है, फैलो लैंड. नाउ नेट सोन एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज अ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. देखो एक एग्रीकल्चरल ईयर में एक बार से ज्यादा जहां पे हम सो कर देते हैं उसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया. अब हमने ये तो पढ़ लिया, लैंड जो है, लैंड हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, रहने के लिए जगह, और भी हमारे एग्रीकल्चर करने के काम आता है. लैंड हमें एक रिसोर्स की तरह सर्व कर रहा है, बट इस लैंड का हम क्या कर रहे हैं, डिग्रेडेशन कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं, हमें जो है घर बनाने के लिए ज्यादा नीड है तो हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ट्रीज को कट डाउन कर रहे हैं, राइट. हम क्या है, ओवरग्रेजिंग करा रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं लैंड पे, उससे क्या है, लैंड डिग्रेड हो रहा है. हम मिनरल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों से हम क्या कर रहे हैं, लैंड का डिग्रेडेशन. पर लैंड तो एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड रिसोर्स है हमारे पास, तो हमें क्या इसके कंजर्वेशन के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लैंड का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, अफॉरेस्टेशन करके, प्लांटेशन करके, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट हम लगाएं, प्लांटेशन करें, और ये जो हम ओवरग्रेजिंग जो चरने के लिए छोड़ देते हैं उसको हम थोड़ा मैनेज करें, तो हम क्या है, लैंड को कंजर्व कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट योर लैंड एज अ resource. Land is a finite magnitude resource, right?
Now, after discussing about land as a resource, we are going to start with soil as a resource. Soil क्या है? It is a renewable natural resource. Soil क्या एक renewable natural resource है? It is a लिविंग सिस्टम, एक लिविंग सिस्टम है. सॉइल जो है उसकी फॉर्मेशन होती कैसे है? सपोज लैंड है, ठीक है, जमीन है, जमीन के ऊपर आपको ब्राउन, ब्लैक, रेड, ये सब कलर की सॉइल होती है. सॉइल जो होती है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है. और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? हम देखते हैं कि कहीं पे तो ब्लैक सॉइल है, कहीं पे रेड सॉइल है, कहीं पे येलो सॉइल है. ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की सॉइल जो है ये कैसे होती है? तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता कैसे है. ठीक है, कौन कौन इफेक्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को? देखो, कोई भी रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट सबसे इंपॉर्टेंट, वेजिटेशन, टेम्परेचर कैसा है, ग्लेशियर्स, डिकम्पोजर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनका डिकम्पोजिशन जो होता है वो किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है? सॉइल की. तो इन सब फैक्टर्स के कारण क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट अ सॉइल प्रोफाइल, तो सॉइल प्रोफाइल मतलब सॉइल के अंदर क्या क्या होता है. तो हियर यू कैन हैव अ लुक. टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर, सब सॉइल एंड स्लिट क्ले, इसमें क्ले ही पार्ट होता है, इसमें स्टोनी पार्ट होता है और इसमें वेदर्ड रॉक मटेरियल्स पाए जाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट कि सॉइल जो है उसके फॉर्मेशन में कौन कौन हेल्प करता है और सॉइल प्रोफाइल बेसिकली क्या होता है. इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होती है, जैसे कि ब्लैक सॉइल, लेटरल सॉइल, एरिड सॉइल. ठीक है, ये सब सॉइल्स जो है अलग अलग तरीके की बनती कैसे हैं सॉइल्स. Classification of soils. There are many types of soil such as alluvial soil, black soil, laterite soil, red soil, yellow soil, forest soil. So in this we are going to discuss about alluvial soil in detail. इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? डिपॉजिट बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स. 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स है. कौन कौन सी? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा. ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है और मैक्सिमम हमारे जो नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन्स है वहां पे क्या है, एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है. आइडियल फॉर दी किसकी ग्रोथ के लिए काम आती है? पैडी, शुगर केन, व्हीट एंड सीरियल्स. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ. इसके अंदर क्या होता है? इस सॉइल के अंदर सैंड भी होती है, स्लिट भी होती है, क्ले भी होती है. हमने सॉइल प्रोफाइल पढ़ी थी ना उसमें. ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, इसकी एज के बेसिस पे हम इसको दो में बांट देते हैं, दैट इज भांगर एंड खादर. भांगर में आ जाता है ओल्ड एलुवियल सॉइल को भांगर बोलते हैं और न्यू को क्या बोलते हैं? खादर. ये ज्यादा फर्टाइल होती है और ये लेस फर्टाइल होती है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कैंकर के नोड्यूल्स होते हैं. ये तो थी हमारी एलुवियल सॉइल. हमने बहुत सारी अलग अलग और भी सॉइल्स हैं, ब्लैक सॉइल, लेटरल सॉइल, ये सारी सॉइल्स हैं. पर ये तो हमने पढ़ लिया कि सॉइल्स होती हैं, बट सॉइल इरोजन क्या होता है? जब ये सॉइल वहां से अपनी पोजीशन से हट जाती है, रिमूव कर दी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सॉइल इरोजन. द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सटिक्वेंट वॉशिंग डाउन इट्स डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन होता कैसे? रेन के कारण हो सकता है, ग्लेशियर के कारण हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण हो सकता है, ओवरग्रेजिंग के कारण हो सकता है. ये सारे क्या फैक्टर्स हैं जिससे हमारा क्या होता है? सॉइल erosion. I hope it is clear now and we are done with our topic named as resources and development. In this chapter we have discussed about resource, its definition, classification, that is on the basis of origin, exhaustibility, ownership and status of development. We have discussed about its classification, then we have discussed about resource planning, how to conserve resource, right? And then we discussed about land as a resource and soil as the resource. I hope all of you understood this chapter, and if you really like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.